السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مقدمۃ الکتاب، پھر اس کے بعد جو ہے 3 ابواب، باب اول اور باب دوم، اور اسی طرح سے تیسرا باب۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مقدمہ اور 3 ابواب اور ایک خاتمے پر۔ تو مقدمہ اور 3 ابواب جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ اب خاتمہ ہے، اس کے اندر 2 فصلیں۔ ان 2 فصلوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کریں گے؟ پہلی فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جا رہے ہیں ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے کتنے علم کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنے علم کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری فصل کے اندر قرآن کریم کو الحان و انغام یا الحان و انغام دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کسرے کی صورت میں یہ مصدر بن جائیں گے اور فتحے کی صورت میں یہ جو ہے لحن اور نغم کی جمع بن جائیں گے۔ تو دونوں طرح سے اس کو بولا جاتا ہے۔ الحان و انغام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ بہرحال اس پہلی فصل کے اندر مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے کتنی چیزوں کا علم ضروری ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل مقصود کے بعد وہ مسائل جو مقصود سے متعلق ہوں اور جن پر کتاب کے ختم کرنے کا ارادہ ہو، ان کے بیان کے لیے مصنفین جو ہے خاتمے کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر جو ہے اصل مقصود تجوید کے مسائل اور اس کے احکامات تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وقف کے احکام و مسائل تھے، جس کو مصنف نے بقدر ضرورت بیان کر دیا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ قاری اور مقری 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ قاری تو ایک اصطلاحی اعتبار سے قاری کہلاتا ہے، اور ایک جو ہے قاری کے معنی آتے ہیں پڑھنے والا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا، اور مقری کہتے ہیں قرآن کریم پڑھانے والے کو، یعنی استاذ کو، جن کو ہماری اردو کی اصطلاح میں قاری کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے مقری کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے، اور پڑھنے والے کو مطلقاً جو ہے قاری کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا یہاں مراد ہے۔ بہرحال تو جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو علم تجوید۔ علم تجوید کیا ہے؟ یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا۔ حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا، یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جس کا بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا جو ہے علم کیا ہے وہ جس کا جاننا ضروری ہے؟ کہہ رہے دوسرا علم اوقاف ہے، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمے پر کس طرح وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہ کرنا چاہیے، اور کہاں معنی کے اعتبار سے قبیح اور حسن ہے اور کہاں لازم اور غیر لازم ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ آپ کو
इल्मुल वक्फ में बतलाया गया था कि इल्मुल वक्फ के अंदर दो चीजें होती हैं, एक महल्ले वक्फ और एक कैफियत वक्फ। उसी को ये बतला रहे हैं कि किस तरह करना चाहिए वक्फ, किस तरह नहीं करना चाहिए। ये जो है कैफियत वक्फ है, कहाँ करना चाहिए माने के एतबार से, कहाँ कभी वक्फ हो जाएगा, कहाँ हसन होगा, कहाँ लाजिम होगा, कहाँ लाजिम नहीं होगा। ये जो है महल के एतबार से इसको कहा जाता है महल्ले वक्फ। अब आगे बतला रहे हैं, तजवीद के अक्सर मसाइल बयान हो चुके हैं। तमाम मसाइल को यहाँ बयान करना मकसूद भी नहीं था, इसलिए कि किताब जो है मुख्तसरन है, लिखी गई है, तो उसका तकाजा ये था कि जितने से काम चल सकता था मुसन्निफ ने ज़रूरी मसाइल जिक्र कर दिए, वरना इसमें बहुत तफसील है और इसमें तफसील आप दूसरी किताबों में देख सकते हैं। तो तजवीद के अक्सर मसाइल बयान हो चुके और औकाफ जो कबीले अदा से हैं, जो कबीले अदा से हैं वो भी बयान कर दिए गए, जो कबीले अदा से हैं वो भी बयान कर दिए गए। और कबीले अदा का मतलब ये है कि किस तरह से कुरान को, ये कुरान के कलमात को किस तरह से पढ़ा जाएगा और कहाँ जो है किस तरह से पढ़ने में खराबी पैदा होगी। अच्छा, पहले एक बात तो ये आप समझ लें कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर जो चार चीज़ें बतला रहे हैं कि कारी मुकरी के वास्ते चार इल्मों का जानना ज़रूरी है। तो पहला बता दिया इल्म तजवीद, दूसरा इल्म औकाफ, तीसरे रस्म उस्मानी यानी कौन सा कलमा कहाँ और किस तरह लिखा जाएगा, और चौथा इल्म है इल्म क़िराअत। तो चार चीज़ें याद रखिए कि कारी मुकरी के वास्ते जो है चार इल्मों का जानना ज़रूरी है, इल्म तजवीद, इल्म औकाफ, इल्म रस्म उस्मानी और इसी तरह से इल्म क़िराअत। बहरहाल अब जो है तफसील सुनिए। तजवीद के अक्सर मसाइल जो है क्या बयान हो चुके और औकाफ जो कबीले अदा से हैं वो भी बयान कर दिए गए, और जो कबीले मानी से हैं मुख्तसर तौर से उनके रमूज का भी, जो दाल अलल मानी है, जो दाल अलल मानी है, जैसा कि आपको बतलाया गया कि मीम, ता, जीम, जा वगैरह जो बयान किए गए उसके अहकाम भी मुसन्निफ ने बयान कर दिए हैं। और भी तफसील बयान करने से किताब तवील हो जाएगी और मकसूद इख्तिसार है। मैंने आपको बतलाया कि तजवीद के मसाइल भी बहुत तफसीली तौर से बयान किए जाते हैं, और इसी तरह से वक्फ का भी जो है मसला बहुत तवील है, लेकिन जितनी चीज़ों की हर एक को ज़रूरत पड़ती है उतना जो है मुसन्निफ ने बयान कर दिया है। और यही बतला रहे हैं कि हमने मुख्तसर तौर से बयान कर दिया है, और भी तफसील अगर बयान करते तो किताब क्या हो जाती, लंबी हो जाती, मुतव्वल हो जाती, और यहाँ पर जो है मकसूद इख्तिसार है। तो क्या बतलाया, और जो कबीले मानी है, कबीले मानी यानी मानी के कबील से उनका ताल्लुक़ है, इससे मुराद जैसे वक्फ़ ताम है, वक्फ़ काफ़ी है, हसन है, कबी है, उन औकाफ का ताल्लुक़ जो है आपको बतलाया गया था वहाँ पर तफसील के अंदर कि मानी के एतबार से इनकी तकसीम की गई है, तो उसको बयान कर दिया। और भी उसकी किस्में हैं जो आप दूसरी बड़ी किताबों में पढ़ सकते हैं। और आगे, और तीसरे रस्म उस्मानी है, तीसरे रस्म उस्मानी है, इसका भी जानना निहायत ज़रूरी है। रस्म उस्मानी क्या है उसकी तफसील आगे जो है आ रही है, वहीं पर आप इसको पढ़ लेना। बस इतना आप समझिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम को जमा करते वक्त कुरान करीम को लिखने के लिए जो तरीक़ा और जो तहरीर इख्तियार की गई थी उसी को कहा जाता है रस्म उस्मानी। तो तीसरे जो है रस्म उस्मानी है, इसका भी जानना निहायत ज़रूरी है, यानी किस कलमे को कहाँ पर किस तरह लिखना चाहिए, किस कलमे को कहाँ पर किस तरह लिखना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं तो
रस्म के मुताबिक, क्योंकि कहीं तो रस्म मुताबिक तलफ्फुज के हैं और कहीं गैर मुताबिक। रस्म मुताबिक तलफ्फुज के हैं यानी लफ्ज की शक्ल तलफ्फुज के मुवाफिक है, यानी लिखे हुए हरूफ जो है तादाद में पढ़े जाने वाले हरूफ के बराबर हों, जैसे मलिकिन नास, मलिकिन नास। इसमें कैसा है, मीम लाम काफ लिखा हुआ है और उसको पढ़ा जाता है। और कभी गैर मुताबिक होते हैं, यानी लफ्ज की शक्ल तलफ्फुज के मुताबिक नहीं होती है, बल्कि लिखे हुए हरूफ तादाद में पढ़े जाने वाले हरूफ से कम या ज्यादा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सलामुन। अब सलामुन में क्या है कि सीन लाम और मीम लिखा जाता है और लाम पे खड़ा जबर, तो यहां लिखा हुआ 3 हर्फ सीन लाम मीम और पढ़ा जाता है सलाम। लाम के बाद एक अलिफ बढ़ा दिया जाता है, तो अब 4 हो गए। और तो ये जो है इसी को मुसन्निफ कह रहे हैं कि क्योंकि जो है कौन सा लफ्ज कहां पर किस तरह लिखा जाएगा, क्यों ऐसा करना है, क्यों इसका जानना जरूरी, क्योंकि रस्म कहीं जो है मुताबिक तलफ्फुज के हैं और कहीं गैर मुताबिक। मुताबिक की मिसाल मैंने दे दिया, जैसे मलिकिन नास में मलिक में 3 हर्फ लिखा है, 3 पढ़ा भी जाता है। सलाम में जो है 3 लिखा जाता, पढ़ा जाता 4। इसी तरह से रहमान देख लीजिए वगैरह। तो अब जो है इसका जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आप क्या कहते हैं रस्म के मुताबिक जो है तलफ्फुज कर देंगे तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मसलन यही सलाम है, उस पर अगर एराब न लगाया जाए, और एराब पहले था भी नहीं, हरकत ये जो है पहले नहीं थी, बाद में हमारी आसानी और सहूलत के लिए लगाई गई है, तो अब उसको लिखा जाता सीन लाम मीम, तो आप इसको सलम पढ़ सकते हैं। इसी तरह से रहमान है तो रहमन पढ़ देते आप, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती, तो उसको बतला रहे। अब अगर ऐसे मौके पर जहां मुताबकत नहीं है वहां लफ्ज को मुताबिक रस्म के तलफ्फुज किया तो बड़ी भारी गलती हो जाएगी। मसलन रहमान बे अलिफ के लिखा जाता है और बेईदिन सूरह ज़ारियात में 2 या से लिखा जाता है, 2 या से लिखा जाता है, लेकिन 1 या का सिर्फ शोसा बनाया जाता है और क्या कहते हैं उसको, उस पर नुक्ता नहीं दिया जाता। और ला इलल्लाहि तुहशरुन, ला अवज़उ, ला अज़बहन्नहु, ला अंतुम, इन 4 जगहों में लाम ताकीद का है और लिखने में लाम अलिफ है। तो अब जो है उसके मुताबिक अगर आप पढ़ते तो क्या पढ़ते, रहमन बिअईदिन ऐसा पढ़ना पड़ता। इधर ला इलल्लाहि, ला अवज़उ, ला अज़बहन्नहु, ला अंतुम पढ़ना पड़ता अगर आप जो है रस्म के मुताबिक पढ़ेंगे तो। लेकिन अब इसका आपको जानना जरूरी ये है कि रहमान की मीम पे खड़ा जबर लगाया जाएगा, बेईदिन में 1 या पढ़ी जाएगी और यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लाम ताकीद के लिए है, लिखने में गरचे अलिफ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा, वरना ताकीद क्या वो तो क्या कहते हैं मनफी बन जाएगा। इसलिए जो है मुसन्निफ ने यह कहा कि अगर आप इस तरह करते, अगर आप इस रस्मुल खत को नहीं जानेंगे तो आप जो है जाहिर सी बात है कि न जानने की सूरत में आप जो है तलफ्फुज रस्म के मुताबिक कर देंगे, और रस्म के मुताबिक कर देंगे आप तो बिल्कुल माना जो है बदल जाएगा। तो कर अब इन जगहों में मुताबकत रस्म से लफ्ज मुहमल और मुस्बत मनफी हो जाएगा। अब रहमान है, आपने पढ़ दिया रहमन, तो मुहमल बन गया। रहमान क्या चीज है? अब ला इलल्लाह पढ़ना है पर ला इलल्लाह पढ़ रहे हैं तो ये मुस्बत क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रस्मुल खत का जानना क्यों जरूरी है और कितना अहम है। अगर नहीं जानेंगे तो मुताबिक रस्म के अगर कहीं तलफ्फुज हमने कर दिया तो माना जो है बिगड़ जाएगा और
बामाना लफ्ज जो है वो मुहमल बन जाएगा, जैसे रहमन में मैंने आपको बतलाया। और अगर जो है रस्म की मुताबकत में आप कहीं पढ़ते हैं कोई हर्फ जहां उसको साकित करना था और आपने उसको पढ़ दिया तो मुस्बत मनफी बन गया, जैसे ला इल्लल्लाह वगैरह के अंदर, तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए जो है रस्मुल खत का जानना जरूरी था। और ये रस्म तौकीफी और सिमाई है। तौकीफी और सिमाई का मतलब ये है कि इसका जो है रस्म का ताल्लुक जो है मौकूफ है सिमा पर, सुनने पर मौकूफ है। मतलब ये है कि रस्म सहाबा जो कही जाती है, रस्म उस्मानी कहिए, तो ये रस्म जो है सहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आपके हुक्म से और इमला कराने से इख्तियार की थी। आप इसकी तारीख जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कैसे कैसे जो है कुरान को जमा किया गया था और रस्म के लिए क्या किया गया था। इसमें जो है क्या कहते हैं, थोड़ी सी तफसील आपके सामने आ रही है। तो तौकीफी और सिमाई का मतलब यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर और इसी तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लिखा है, लिहाजा इस रस्म के खिलाफ लिखना जायज़ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि लिखना जायज़ तो नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक पढ़ना ये भी जायज़ नहीं, क्योंकि अगर उसके मुताबिक आप पढ़ेंगे तो कहीं बामाना लफ्ज़ जो है मुहमल बन जाएगा, यानी मौजू मुहमल बन जाएगा और मुस्बत मनफी बन जाएगा, जैसा कि ऊपर मिसाल में दिया। तो बहरहाल कह रहे हैं और ये रस्म तौकीफी और सिमाई है, इसके खिलाफ लिखना जायज़ नहीं, इस वास्ते कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस वक्त कुरान शरीफ नाजिल होता था उसी वक्त लिखा जाता था। सहाबाए किराम के पास मुतफर्रिक तौर से लिखा हुआ था। उसके बाद एक वाक़या पेश आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इकट्ठा एक जगह जमा किया गया, यानी कैफ़ मुत्तफ़क़, जैसे मिलता गया वैसे जमा किया जाता रहा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में निहायत ही एहतमाम और इजमाए सहाबा से मुतअद्दिद कुरान शरीफ लिखवा कर जा बजा भेजे गए। इसमें जो है कितने कुरान लिखवाए गए, इसमें जो है कई कौल है। किसी ने कहा कि 4, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 8, इस तरह से कहा है, 4 कौल हैं। तो बहरहाल जितने भी नुस्खे उसके लिखवाए गए वो सब जो है सहाबाए किराम के इजमा से लिखवाए गए थे। तो अब आगे कह रहे जमे अव्वल और जमे सानी में इतना फ़र्क है कि पहली दफ़ा में जमा गैर मुरत्तब था और जमे सानी में सूरतों की तरतीब का भी लिहाज रखा गया है। जमे अव्वल से मुराद क्या है? मुराद है कि अहद सिद्दीक़ी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जैसे जमा किया गया था। और जमे सानी से मुराद जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो जमा किया गया वो जमे सानी है। बहरहाल जमे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का है और जमे सानी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। दोनों में फ़र्क क्या है बतला दिया। जमा गैर मुरत्तब था, पहली दफा में जमा गैर मुरत्तब था। गैर मुरत्तब का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बतलाया कि हजरात सहाबे किराम के पास जो है मुख्तलिफ तौर से लिखा हुआ था। उसकी थोड़ी तफसील ये है कि हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयात कुरानी को जमा करके उन्हीं कागज़ के सहीफ़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरतीब के मुवाफिक मुरत्तब शक्ल में तहरीर फरमा दिया था, मगर उसमें सूरतों की इस मौजूदा तरतीब का लिहाज नहीं किया गया था जो अभी हमारे सामने है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सूरतों को उस तरतीब के मुवाफिक लिखा गया था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक हजरात सहाबा किराम ने महफूज की थी। अच्छा, अब जो है आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया था? असल में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसको लिखवाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक मुरत्तब नुस्खा उम्मत की इजमाई तस्दीक के साथ जो है तैयार हो जाए।
ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी तरफ रुजू किया जा सके। अच्छा, आगे फरमा रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस काम को हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के सपुर्द किया, क्योंकि ये कातिबुल वही थे। और उर्ज़ाए अखीरा में, उर्ज़ाए अखीरा से मुराद है आखिरी दौर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर साल रमज़ान मुबारक में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दौर सुनाया करते थे। आखिरी रमज़ान में आपने 2 दौर फरमाए थे, हजरत ज़ैद उनमें मौजूद थे। आप जो है जो दौर करते हैं ना, आप हुफ़ाज़ किराम तरावी के लिए या ऐसे भी दौर करते हैं, तो दौर का जो सबूत है यहीं से है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल क्या कहते हैं, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर जो है किया करते थे। ये ज़रा लंबा बयान है, आप इसको जो है यहीं पर बस कर दिया जाए, फिर आइंदा कल के सबक में इसको पढ़ाया जाएगा यहाँ से। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी यहाँ से जो है दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।